Good morning, students. This is Professor Kavita Kamerikar from Sagar Institute of Science and Technology, Bhopal. In this lecture, we will discuss the next topic of the unit number 2, that is the Maxwell's inductance capacitance bridge. In the last lecture, we have discussed the Maxwell's inductance bridge, in which we have calculated the unknown inductance in terms of the known parameters. This is the lecture plan 18 of the subject EMI. Maxwell's inductance capacitance bridge. This is a type of the AC bridge in which the unknown inductance is measured by comparison with standard known capacitance. The connection diagram of this is shown in the figure. Here we are using 4 arms AB, BC, CD and DA. We have calculated the impedances of 4 arms, in which 3 impedances are known to us and 1 impedance is unknown. There is a one detector that is used to detect the balance condition of the bridge circuit. In the balance condition, there will be no current flow through the detector. There is a one power supply or the voltage AC power supply that is used to provide the power to the circuit. So it is the circuit diagram of Maxwell inductance capacitance bridge. As we discuss, L1 is the unknown inductance जिसको हमें calculate करना है. It is in series with the resistance R1. C4 is the variable standard capacitor, and R2, R3 and R4 are the resistances. अब इसको हम क्यों बोलते हैं मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज? बिकॉज वी विल कैलकुलेट द इंडक्टेंस L1 in terms of the known capacitance C4. So it is called as the Maxwell's inductance capacitance bridge. Next is the impedances. जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 4 आर्म्स है. वी हैव कैलकुलेट द impedances ऑफ ऑल द आर्म्स. तो Z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Z1 विल बी इक्वल्स टू द R1 प्लस J ओमेगा L1, क्योंकि यहाँ पर 2 कंपोनेंट लगे हुए हैं, इंडक्टर और रेजिस्टेंस. सो Z1 विल बी इक्वल्स टू द R1 प्लस J ओमेगा L1. दिस इज द वैल्यू ऑफ Z1. Z2 क्या हो जाएगा? Z2 विल बी R2. Z3 will be equals to the R3. And what is the Z4? This is the Z4. Z4 is the parallel combination of capacitance and resistance. So the value of Z4 is R4 upon 1 plus J omega C4 R4. अब जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, फॉर अ ब्रिज टू बी बैलेंस द multiplication of opposite impedances must be equal. So here Z1 Z4 will be equals to the Z2 Z3. अब हम ऑलरेडी सारी वैल्यूज़ निकाल चुके हैं. हमें क्या करना है? हमें इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करना है टू फाइंड आउट द अननोन वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस L1. तो जैसे ही हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की, ये इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगी. अब हमें क्या करना है? वी हैव टू राइट Z1 इंटू Z4. दिस इज द Z4, दिस इज द Z2 एंड दिस इज द Z3. ये वैल्यू पुट करने के बाद ये इक्वेशन बन गई. अब हमें क्या करना है? वी हैव टू सेपरेट द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, एंड बाय इक्वेटिंग इट टू 0 वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R1 एंड द वैल्यू ऑफ L1. सो द फॉर्मूला फॉर L1 इज R2 R3 अपॉन R2 R3 इंटू C4. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? वी हैव कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन इंडक्टेंस L1 in terms of the known capacitance C4. So it is called as the inductance capacitance bridge. और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है? रेजिस्टेंस इज R2 R3 अपॉन R4. तो यहाँ से हम इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इट इज़ द फॉर्मूला फॉर द इंडक्टेंस फॉर द मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज. जब हम इंडक्टर की बात करते हैं, देयर इज़ अ वन टर्म कॉल्ड एज द क्वालिटी फैक्टर. Inductance is always related with the coil. Every coil is having a self-inductance. So, there is a term called as the quality factor to find out the performance of coil. That how much the coil is performing, how much the energy it can be stored. So, the quality factor is related with the
efficiency and performance of the coil. So here we are calculating the quality factor of the inductor. क्या फॉर्मूला होता है इसका? ओमेगा L1 अपॉन R1. By putting the value of L1 we can get omega R2 R3 C4 upon R1. Now what is the R4? R4 is R2 R3 upon R1. तो यहाँ से हमें Q की वैल्यू क्या मिल जाएगी? Q will be equals to the omega C4 R4. So you can see that the quality factor is depending upon the value of the capacitance. तो कैपेसिटेंस की वैल्यू को वेरी करके हम क्वालिटी फैक्टर को वेरी कर सकते हैं. So it is very important parameter in terms of the inductor. Next is the phasor diagram of Maxwell's inductance capacitance bridge. Same phasor diagram, इसी तरीके से प्रोसीजर जो हमने यूज़ किया था स्टेप बाय स्टेप वैसा ही प्रोसीजर हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड इट फॉर द स्टेप बाय स्टेप मेथड. What is the phasor diagram? Phasor diagram is the representation of various phases of the circuits. As we know that various power supply are connected, so the voltage and the current can be vary. So phasor diagram is the relationship between the different voltage and the current component of the circuit. तो ये तो इसका phasor diagram बना हुआ है, but we have to understand it by using step by step procedure. So the explanation of phasor diagram. हम स्टार्ट करेंगे आर्म ए बी से. तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर आर्म ए बी में क्या क्या लगा हुआ है. एक रेजिस्टेंस R1 लगा हुआ है और एक L1 लगा हुआ है. तो रेजिस्टेंस में जो करंट और वोल्टेज रहेगा वो कैसा रहेगा? सेम फेज में रहेगा. तो इनिशियली हमने यहाँ पर एक रेफरेंस फेजर ले लिया है, जो कि हमेशा हमें लेना रहेगा फेजर डायग्राम को ड्रॉ करते समय. वी हैव टेकन द रेफरेंस फेजर एज I1. नाउ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 इज I1 R1. तो ये भी क्या रहेगा? सेम फेज में रहेगा विद द I1. और इंडक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज रहेगा? I1 ओमेगा L1. तो जैसे कि हमें मालूम है कि इंडक्टर में जो वोल्टेज रहता है दैट विल लीड द करंट बाय 90 डिग्री. तो अगर करंट का फेज ये बना हुआ है तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कहाँ जाएगा? दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर इंडक्टर वोल्टेज. ओके, सो this is the I1 R1 and this is the I1 omega L1. Now the total voltage across this branch, this is E1. और E1 क्या हो जाएगा? E1 will be addition of these two voltages. तो E1 कैसे ड्रॉ करेंगे? इन दोनों को हम आपस में ज्वाइन करेंगे. तो जहाँ पे ये ज्वाइन होगा these two point, this will be the E1. So E1 will be equals to the I1 omega L1 plus I1 R1. So it is the phasor diagram for the branch AB. अब इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है? AD. हमें किसके लिए बनाना है? ये AD के लिए बनाना है. अब AD में क्या है? वोल्टेज कितना लिया है हमने? E2 लिया है. यहाँ पे वोल्टेज कितना था? E1. दिस इज द E3 एंड दिस इज द E4. सो इन द बैलेंस कंडीशन E1 विल बी इक्वल्स टू द E2. क्यों होगा ऐसा? क्योंकि यहाँ पर डिटेक्टर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा. तो जितना वोल्टेज इनके बीच में होगा ए और बी के बीच में, वही वोल्टेज ए और डी के बीच में होगा. इसी तरीके से जितना वोल्टेज बी और सी के बीच में होगा वही वोल्टेज सी और डी के बीच में होगा. सो इन द बैलेंस कंडीशन E1 विल बी इक्वल्स टू द E2 एंड E3 इज इक्वल्स टू द E4. तो इसी कंडीशन को यूज़ करते हुए हम आगे फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे. अब यहाँ पर आप देखो, अब हम निकाल चुके हैं E1 इक्वल्स टू E2. तो जहाँ हमने E1 के लिए बनाया था वहीं पर हम किसके लिए बनाएंगे? E2 के लिए. एंड व्हाट इज E2? E2 इज दिस. E2 इज सिमिलरली वी कैन राइट हियर. E2 क्या है? E2 इज नथिंग बट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R2. तो E2 की वैल्यू क्या हो गई? I2 R2. और जैसे कि हम जानते हैं रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहते हैं. तो जहाँ हमने वोल्टेज ड्रॉ किया है उसी लाइन पर हम आगे क्या ड्रॉ करेंगे? I2. सो दिस इज़ द फेजर डायग्राम फॉर द ब्रांच AD. तो जहाँ पर हमने वोल्टेज ड्रॉ किया था वहीं पर I2 भी ड्रॉ कर लिया. तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? वी विल गेट द फेजर डायग्राम फॉर ब्रांच AD. तो क्या किया हमने? सबसे पहले हमने
ब्रांच ए बी के लिए बनाया जिसमें कि हमें E1 मिल गया। अब हम बैलेंस कंडीशन में क्या यूज़ करेंगे, E1 इक्वल्स टू E2, तो यहाँ से हमें E2 भी मिल गया। E2 मिलने के बाद जहाँ पे हमने E2 बनाया उसी लाइन पे क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा। सो इट इज़ द फेजर डायग्राम फॉर द ब्रांच AD। अब इसके बाद BC के लिए, अब जैसे कि हम BC में देख सकते हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, दिस इज़ द वी कैन राइट एज I3 R3। जैसे कि अगर हम मान ले कि यहाँ पे करंट I1 है, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I3 और यहाँ पर I4 है, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, I3 R3। लेकिन अगर हम बैलेंस कंडीशन की बात करें तो जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है वही करंट यहाँ भी जा रहा है, जो करंट यहाँ फ्लो हो रहा है वही करंट यहाँ भी जा रहा है। यानी कि इस ब्रांच में अगर करंट I1 है तो यहाँ पर भी करंट कितना हो जाएगा, I1। तो हम यहाँ पर I3 ना लिख के क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट I1। So what is the voltage drop across the R3? That is the I1 into R3, क्योंकि ये भी I1 है और ये भी I1 है। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। अच्छा, दूसरी बात बैलेंस कंडीशन है तो E3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E4 हो जाएगा। E3 इक्वल टू E4 एंड I1 इक्वल टू I3। तो जहाँ हमने I1 प्लॉट किया था वहीं पर क्या आ जाएगा, I3 आ जाएगा। तो I1 के फेज़र को ही हम I3 लिख सकते हैं। अब ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप है, तो जिस फेज़ में करंट रहेगा उसी सेम फेज़ में क्या रहेगा, वोल्टेज रहेगा। तो यहाँ हमने I1 R3 को भी ड्रॉ कर दिया। I1 R3 किसके बराबर है, दिस इज इक्वल्स टू द E3, दिस इज इक्वल्स टू द E3। ये देखो आप डायग्राम में I1 R3 क्या है, दिस इज द E3। तो ये बन गया फेजर डायग्राम फॉर द ब्रांच BC। तो यहाँ तक हम बना चुके हैं। सबसे पहले हमने AB के लिए बनाया, फिर BC के लिए, फिर AD के लिए। तो ये 3 फेजर डायग्राम हम ड्रॉ कर चुके हैं 3 ब्रांचेस के लिए। अब इसके बाद कौन सी ब्रांच बची है, दैट इज़ द ब्रांच CD। यहाँ तक हमने बना लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर BC के लिए मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। E3 इक्वल टू I3 R3 होगा, I1 की वैल्यू I3 के बराबर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, E3 इक्वल टू I1 R3। अब आप CD के लिए ड्रॉ करेंगे। अब आप CD में देखो आप किस तरीके से काम हो रहा है, दिस इज़ द ब्रांच CD। अब यहाँ पर जो करंट I2 आ रहा है, दिस इज़ सेपरेटिंग और इट इज़ गोइंग टू द 2 पैरेलल ब्रांचेस। तो यहाँ पे करंट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, R प्लस IR प्लस IC। एक करंट जा रहा है R में, एक करंट जा रहा है कैपेसिटेंस में। और I2 किसके बराबर है, I2 इज इक्वल्स टू I4, यानी कि जो करंट यहाँ है वही करंट यहाँ है। तो हम इसको I4 ना लिख के क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट ओनली I2। तो I2 के 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए, दिस इज IR एंड दिस इज IC। सो इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ I2। और यहाँ पर वोल्टेज कितना है, दिस इज द E4 एंड वी हैव सीन देयर E3 इक्वल टू E4। और E4 की वैल्यू क्या होगी, E4 किसके बराबर होगा, E4 क्या है, द वोल्टेज बिटवीन द पॉइंट C एंड D। अब आप देखो यहाँ पर ये दोनों कैसे कनेक्ट है आपस में, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इन द पैरेलल वोल्टेज ड्रॉप इज सेम। तो जितना वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस में होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटर में भी होगा। तो हम किसी एक के क्रॉस निकाल के इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो E4 क्या हो गया, E4 इक्वल टू द IR R4 और E4 कैन बी IC ओमेगा C4। ये दोनों इसके लिए फॉर्मूले हो सकते हैं, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो यहाँ से हम E4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे कि बैलेंस कंडीशन हम देख चुके हैं, E3 इक्वल टू E4 होता है। तो जहाँ पर हमने E3 के लिए फेजर बनाया था वहीं पर क्या आ जाएगा, E4 आ जाएगा। तो सेम लाइन पर हमने क्या ड्रॉ कर दिया, या उसी को हमने क्या लिख दिया, वी कैन राइट हियर दैट E3 इक्वल टू E4। अब E4 की वैल्यू क्या है, IR R4 और इट कैन बी IC अपॉन ओमेगा C4। तो ये साथ में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने वोल्टेज के लिए फेजर बना दिया। अब अगर हम करंट की बात करें तो यहाँ पे 2 करंट है, एक तो IR है और एक IC है। IR क्या है, द करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। जहाँ पे हमने वोल्टेज ड्रॉ किया है उसी सेम लाइन पे क्या आ जाएगा, IR आ जाएगा। और कैपेसिटर के लिए क्या होगा, कैपेसिटर में करंट जो रहेगा या जो वोल्टेज रहेगा, द वोल्टेज विल बी
90 डिग्री लैग विद द करंट। तो अगर वोल्टेज यहाँ बनाया है तो करंट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो ये हो गया IC और ये हो गया IR। सो दीज आर द टू करंट कंपोनेंट्स इन द ब्रांच CD। अब हमें टोटल करंट अगर निकालना है तो टोटल करंट क्या होगा, कॉम्बिनेशन, और वी कैन राइट I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस IR प्लस IC। तो IC वाले फेज़र को हमने आगे बढ़ा दिया और IR वाले फेज़र को भी आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, I2। सो दिस इज़ द फेज़र डायग्राम फॉर I2। कैसे बनाया हमने I2 को, I2 क्या है, एडिशन ऑफ IR प्लस IC। तो IR वाले फेज़र को और IC वाले फेज़र को आगे बढ़ा के हमने ज्वाइन कर दिया, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, वी विल फाइंड आउट द I2। तो ये हो गया फेज़र डायग्राम फॉर द ब्रांच CD। सिमिलरली जैसे कि हमने मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज में किया था, वही काम यहाँ पर भी करेंगे। हमें क्या निकालना है, टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट। टोटल वोल्टेज क्या होगा, टोटल वोल्टेज मतलब कि E जो लगा हुआ है यहाँ सप्लाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो E1 प्लस E3 या फिर E2 प्लस E4। टोटल वोल्टेज कैसे निकालेंगे हम, टोटल वोल्टेज E लगा हुआ है तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, E1 प्लस E3 और E2 प्लस E4। तो यहाँ पर हम जो फेज़र डायग्राम हम बना चुके हैं वोल्टेजेस के लिए, उन्हीं को ऐड करके हम टोटल वोल्टेज निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने E1 के लिए यह बनाया था, एंड E1 इज इक्वल्स टू द E2, E3 के लिए यह बनाया था और E3 इज इक्वल्स टू द E4। तो इन दोनों फेज़र्स को एक्सटेंड करके हम क्या बना सकते हैं, द फेज़र डायग्राम फॉर द टोटल वोल्टेज E। तो इस तरीके से हम टोटल वोल्टेज ड्रॉ करके, सो द लास्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट वोल्टेज और द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर E1 E2 की वैल्यू सेम है और E3 E4 की वैल्यू भी सेम है, तो दोनों को हमने एक्सटेंड करके क्या बना लिया, टोटल वोल्टेज। सो इट इज़ द कंप्लीट फेज़र डायग्राम फॉर मैक्सवेल्स इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। जो एग्ज़ाम में आपको फेज़र डायग्राम पूछा जाएगा उसमें आपको ये डायग्राम बनाना है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड समझना बहुत ज़रूरी है, उसी के बाद ये फेज़र डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फेज़र डायग्राम फॉर मैक्सवेल्स इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। नेक्स्ट इज़ द advantages of the Maxwell bridge. The first advantage is that the balance equation of the circuit is free from the frequency. It means there will be no term containing omega or the frequency. Both the balance equations are independent of each other. यानी कि जो हमने L1 के लिए निकाली थी और जो R1 के लिए निकाली थी, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगी। The Maxwell's inductance capacitance bridge is used for the measurement of high range inductance. Disadvantages of the Maxwell's bridge. The Maxwell's inductance capacitance bridge requires a variable capacitor which is very expensive. So we can use standard variable capacitor. This is the first disadvantage of the Maxwell's inductance bridge. The second is the bridge is limited to the measurement of low quality coils, that is from 1 to 10. And it is also suitable for the low values of quality factor, that is the less than 1. So the Maxwell bridge is only suitable for the measurement of medium quality coils. This is the another disadvantage of Maxwell's inductance capacitance bridge. So because of these disadvantages, the Hayes bridge is used for the measurement of circuit inductance. जो हेज ब्रिज है, इट इज़ द एडवांस फॉर्म ऑफ मैक्सवेल ब्रिज। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दिस ऑल अबाउट द मैक्सवेल्स इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। हमने पहले मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें कि हमने इंडक्टेंस कैलकुलेट किया था इन टर्म्स ऑफ द नॉन इंडक्टेंस, एंड इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस मैक्सवेल्स इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, जिसमें कि हमने अननोन इंडक्टेंस कैलकुलेट किया है in terms of the known standard capacitor. Thank you.